Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Pragya Biology classes. This is Sal Pragya from Pragya Biology classes, and today we are going to discuss about kingdom classification. In the first class of kingdom classification, we have already discussed what is classification, why do we need classification, and how do we classify organisms with the help of different categories in biological system of classification. So we have already discussed about different categories of biological classification system, and in this class we are going to study about different systems of biological classification. So dear students, as we know, since ancient times, organisms have been classified into different classification system. Organisms को हम लोगों ने डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स के आधार पर बांटा है, और इसको क्लासीफाई जो हम लोग करते आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, वो एंशिएंट टाइम से ही करते आ रहे हैं, और इस तरह से डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए हैं. दीज आर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. आफ्टर दैट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम केम, एंड देयर आफ्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम also given by R.H. Whittaker, and then 6 kingdom classification is also proposed by Woose that divided organisms into 6 kingdoms. So in this way we have seen that since ancient time organisms have been divided into different biological classification systems, or we can say that organisms को different biological classification systems के आधार पर classify किया गया. तो we have to study different biological classification systems in which we have to study 5 kingdom classification system in detail. हम लोगों के सिलेबस में जो इंक्लूड किया गया है वो है 5 kingdom classification system. तो हम लोगों को उससे डिटेल में पढ़ना है, और बाकी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को बस जानना है कि वो क्यों प्रपोज किए गए, और प्रपोज करने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को रिजेक्ट करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को अपनाया गया. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. हम लोगों को जानना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या. तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आया क्लासिफिकेशन सिस्टम वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन system, and it was proposed by Linnaeus. It was proposed by Linnaeus in 1758. Okay. So according to this biological system of classification, organisms were divided into 2 kingdoms. These were Plantae and Animalia. Plantae and Animalia. All the autotrophic organisms were kept under Plantae, and heterotrophic organisms were kept under Animalia. But this classification system have some drawbacks. इस classification system में कुछ कमियां थी. For examples, this system did not differentiate between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular, or photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Not only this, bacteria, as we know, it is non-green. It is non-green, but bacteria was also kept under plants because they possess सेल वॉल. सेल वॉल के प्रेजेंस के कारण बैक्टीरिया को भी प्लांटी ग्रुप में रखा गया, जबकि इसके अंदर प्लांट्स की और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है. इवन इट वाज नॉट ऑटोट्रॉफिक. ये ऑटोट्रॉफिक भी नहीं था, ये नॉन ग्रीन सब ऑर्गेनिज्म थे. तो ये एक ड्रॉबैक था. और इतना ही नहीं, जैसे हम लोग फंगी के बारे में जानते हैं, तो फंगी आर केप्ट अंडर प्लांटी, और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि फंगी में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं. लेकिन जो प्लांट्स होंगे वो तो हेटरोट्रॉफिक नहीं होते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉफिक. दैट मीन्स उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, इजंट इट. सो प्लांट्स include all the autotrophic organisms, but जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार कुछ
हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी प्लांट के ग्रुप में रखा गया था, प्लांट किंगडम में रखा गया था. सो इट वाज द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जैसे यूग्लिना. यूग्लिना के पास जो फीचर्स थे, उनके पास दोनों तरह के फीचर्स थे. वो एनिमल के भी फीचर्स थे और प्लांट्स के भी फीचर्स थे. तो इस तरह से उन लोगों को, दैट मीन्स यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए एक अलग किंगडम की ज़रूरत थी. पर उन्होंने क्या किया, बस सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में ही क्लासीफाई कर दिया था. तो दीज वेयर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम्स classification system, and this is the reason that this system was rejected. So after two kingdom classification system, three kingdom classification system came in existence, and it was proposed by Ernst H. Haeckel. and Ernst H. Haeckel के अनुसार जो क्लासीफाई किया गया तो सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को एक अलग किंगडम में रखा गया और वो किंगडम था प्रोटिस्टा. सो he just kept all the unicellular organisms in a third kingdom, that is Protista. So after third kingdom classification, five kingdom classification came in existence, and in 1969 an American ecologist R.H. Whitaker added two more kingdom and proposed five kingdom classification, which included Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So Monera included all the unicellular prokaryotes. Monera के अंदर किसे रखा गया, सारे यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स को. तो अब यूनिसेलर, वी ऑल नो द ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी ऑफ विच organisms are made up of only one cell. uni means one, सेलुलर तो बॉडी के एक सेल का अगर बना हो तो सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स. एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा, स्कैटर्ड होगा इन द साइटोप्लाज्म. दैट मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स. तो ये क्या है, न्यूक्लियर जो है वेल डिफाइंड नहीं होंगे. न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड इन अ मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन. ये क्या होगा, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस जो होंगे वो स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स. सो मोनेरन्स के अंदर किसे रखा गया, तो यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स को. देन द सेकेंड किंगडम वॉज प्रोटिस्टा, एंड इन प्रोटिस्टा he has kept all the unicellular eukaryotes. प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रखा, यूनिसेलर यूकैरियोट्स को, जबकि मोनेरा में उन्होंने रखा था यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स को. तो यूकैरियोट्स किसे कहेंगे हम लोग, यूनिसेलर तो हम लोग सभी समझ रहे हैं कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ओनली वन सेल एंड ऑल द बॉडी फंक्शंस और लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स. बट व्हाट इज यूकैरियोट, तो यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं और उनके सेल के अंदर सारे वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे. तो जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इस तरह से सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में. देन द थर्ड किंगडम वाज फंगी. ओके, सो इस कैटेगरी में, इस किंगडम में उन्होंने किसे रखा, तो सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को. वो भी कैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को, जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हों. दैट मीन्स विथ सेल वॉल. ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे possess सेल वॉल. तो फंगी के अंदर मल्टीसेलर, non-photosynthetic and eukaryotic organisms were kept. Thereafter, he also divided the fourth kingdom, that was Plantae, and in this kingdom he kept multicellular photosynthetic eukaryotes with cell wall. Multicellular photosynthetic eukaryotes with cell wall. And thereafter the fifth kingdom was Animalia, and in this kingdom he kept multicellular
नॉन फोटोसिंथेटिक। अब कैसे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ रखा, जो प्लांटी में उन्होंने रखा था वो थे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, लेकिन एनिमेलिया में उन्होंने रखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तो रखा ही रखा, और किसे रखा, नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स को रखा विदाउट सेल वॉल। और उन यूकैरियोट्स के पास क्या था, सेल वॉल नहीं थे, लेकिन जो प्लांटी में उन्होंने रखा था ऐसे यूकैरियोट्स को रखा था जो विद सेल वॉल थे, बट एनिमेलिया में उन्होंने जिस ऑर्गेनिजम्स को रखा वो यूकैरियोट्स थे बट विदाउट सेल वॉल। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम थे उसमें उन्होंने रखा था यूनिसेलुलर को ऑर्गेनिजम्स को, और जो बाकी के 3 फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया थे उसमें उन्होंने रखा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो मोनेरा था उस ग्रुप में या उस किंगडम में जो रखा गया था वो प्रोकैरियोट्स को रखे गए थे, और जो प्रोटिस्टा लिया हमने तो उसमें किसे रखा गया था, यूकैरियोट्स को। तो इन दिस वे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by R.H. Whittaker in 1969. Thereafter, 6 kingdom classification system also came in existence, and it was proposed by Woese in 1977, and he divided Monera further into 2 kingdom. मोनेरा को इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम तो थे ही, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को फिर से 2 किंगडम में बांट दिया उन्होंने। तो मोनेरा को किस 2 किंगडम में बांटा गया, तो ये जो 2 किंगडम थे वो थे आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में इन्होंने अरैकिया को इंक्लूड किया और यूबैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया। सो इन दिस वे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन also came in existence. So but in our syllabus 5 kingdom classification is included, so we have to study 5 kingdom classification in detail. That we will study in our next video. So in my next video I am going to discuss 5 kingdom classification system in very much detail. So let's summarize what we have studied today in this video. So first of all we have studied different types of classification system, in which we have studied 2 kingdom classification, then 3 kingdom classification, 5 kingdom classification and 6 kingdom classification. We have also studied what are the drawbacks of 2 kingdom classification system. So see you very soon in my next video where I am going to discuss 5 kingdom classification in detail. So thank you very much for watching the video.